can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज मैं और प्रशांत तो है ही, बट हमारे साथ श्रीकांत भी जुड़ चुके हैं क्योंकि क्रिसमस ईव पे खबर ही ऐसी आई है, मतलब जबरदस्त टाइप की कि मिरेकल हो चुका है। कॉन्फर्मेशन आई है कि सर जिम रैटक्लिफ, SJR जिसे यूनाइटेड वर्स में लोग कह रहे हैं ट्विटर पे, एनीवे उन्होंने 25% शेयर्स का एक्विजिशन कंप्लीट किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास रहेगा। तो ये तो ब्रीफ हो गया, बट इन सब का मतलब क्या है उसके लिए हमने श्रीकांत को बुलाया आज। तो वो ही विल एक्सप्लेन टू अस के व्हाट डज ऑल दिस मीन एंड हाउ डज इट अफेक्ट अस राइट नाउ एंड मे बी 2 years डाउन द लाइन। तो क्या क्या कमिटमेंट्स है और क्या स्ट्रक्चर है ये डील का, श्रीकांत समझाएंगे अब। So thanks guys for having me and hosting me on this. I am a big fan of this podcast and प्रशांत को तो मैं परेशान करते रहता हूँ कि मुझे भी बुलाओ. It took Jim Ratcliffe's 25% stake acquisition to actually feature. मैं भी रुका हुआ था strategic review कब खत्म होगा टीम का और डील कब होगी. But anyway, I think बहुत there is a lot of confusion, lot of noise, and I don't think journalists have covered the deal quite well, honestly. मतलब ये deal हमेशा ही majority deal ही होनी थी. What does majority mean? Majority means you have at least 51% of the shareholding of the company, right? So why is 25% and 50 majority being said in the same line? Typically क्या होता है? अब ये बात समझो कि we all know that nobody gets along with the Glazers, right? If managers, CEOs are not getting along with the Glazers, fans are not getting along with the Glazers, why would somebody pay a billion plus to get 25% and be in any kind of partnership with a Glazer? So from day one, whether somebody bought 25 or 75, the deal was always to get 100% control of the club. When they get that 100% is the only thing we are debating. Today, the first step was buy 25% shares from the Glazers. मतलब मैंने एक 1.2 बिलियन पाउंड्स ग्लेजर्स के पॉकेट में डाला और बोला ये 25% जो तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड में ओन करते हो वो शेयर्स अब मेरी. That is what confirmation we have got. That is the agreement that has been signed. After an agreement is signed, typically you need clearances, like they have said कि प्रीमियर लीग का क्लियरेंस चाहिए, बहुत सारे छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज उसके बाद भी होते हैं, फिर मनी ट्रांसफर होता है, which is being contemplated for 6 weeks. Usually 3 weeks होता है, 4 weeks होता है in any transaction, but 6 to 8 weeks is usually when there's an external party की गवर्नमेंट की क्लियरेंस चाहिए जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, 6 to 8 weeks लग जाता है. That is the only thing pending. So money has not been transferred, but the agreement and the intent to do so has been established right now. Typically in a deal of this size, why are they saying majority? They are saying that Glazers had 69% of the United shareholding, which was all in the form of Class B shares, or most of it was in the form of Class B shares. About 31-32% of United's shareholding was in the form of Class A shares. Class A shares or Class B shares सिर्फ यूएस में ऐसे तरीका होता है जिसमें तुम वोटिंग राइट्स अलग कर सकते हो, वरना सब शेयर्स इंडिया में तो नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल. तो क्लास बी शेयर्स एट 10 times द वोटिंग राइट्स ऑफ क्लास ए शेयर्स. दिस वाज जस्ट टू प्रोटेक्ट देम बिकॉज यूएस में काफी कॉमन है कि कोई हेज फंड 31% शेयर होल्डिंग खरीद के फिर सिग्निफिकेंट एक्टिविज्म कर सकता है कि तुम या ये फिर चेंज वो करो वो हॉस्टाइल चेंज करो. टेक ओवर से भी बचा सकते हैं वो उनको. Correct. So usually to save yourself from things like hostile takeover and all of that, you keep voting rights with yourself so that तुम्हारे शेयर होल्डिंग को कोई खरीद नहीं सकता. To be clear, जो 69% Glazers होल्ड करते थे वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कोई नहीं खरीद सकता है. They can only buy shares from the remaining 31%, which means 31% of the company shares are floating. Okay, so they have bought from that 69. Jim Ratcliffe has bought 25. And what he's saying is, I have given out an offer at $33 per share. Yesterday, United's share price was 19.8, if I'm not wrong. कि मैं बाकी का 25% मैं मार्केट से खरीदूंगा, मतलब ये बाकी का 31% क्लास ए शेयर्स में से खरीदूंगा. So between Class B and Class A shares, they will end up at about 50 odd percent. And he has said that he will put $300 million more into the company. $300 million at a 5.1, $5.2 billion valuation equates to 5%, which means 25% Glazer से खरीदेगा, 25% market से खरीदेगा और approximately 5% वो कंपनी में डाल के अपना बना लेगा. So he will end up with about 53-54% stake. But the 25 to 50 का जर्नी जो है जो पब्लिक मार्केट से खरीदेगा will be a very long drawn process, probably will take 9 to 12 months. But वो होगा. He's given out an offer and only a fool will not take it कि अगर तुम्हारे पास 19 रुपीज $19 का शेयर पड़ा है और कोई तुम्हें 33 में खरीदने को रेडी है तो तुम बेच लिटरली ही दोगे. डबल, ऑलमोस्ट डबल. ये बेसिकली जो हमारे मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो बायबैक कहते हैं, बेसिकली इट इज सिमिलर, यू कैन से सिमिलर This टू. is this This is not buyback. ये क्या? By the way, Glazers ने ऐसे ही United खरीदा था when United was हाँ. listed in the UK. Basically, you give a higher share price than what is there in the market. So the board has to accept it, and then you
It's called a tender. हाँ सॉरी, तो यस, तो जो भी यूनाइटेड के आज शेयर होल्डर हैं, एज ऑन पर्टिकुलर कट ऑफ डेट होगा, उनको एक स्पेसिफिक ईमेल जाएगा सेइंग यू कैन टेंडर योर शेयर्स एट $30 per share. And I think if my understanding of markets is right, literally tomorrow the share price should become 33 and be flat at that price for a very long time, because Yeah. वही है share price. That's how it should work. Yeah. And that's how they will get to majority. तो ये The जो, other thing is, हाँ सॉरी sorry, the other complication in this was class B shares जब कोई और खरीदता है, they get converted to class A shares in the past. मुझे नहीं लगता है कि Jim Ratcliffe is dumb enough to sign a deal where he has 55% shareholding in the company, but because Glazers have more class B shares, they will have more voting rights. वो possible नहीं है. वो that the football operations will come under his control on acquisition of 25% stake, which will be probably end of January, mid-February. And the day he completes majority acquisition, which can be 6-9 months down the line or maybe a year, that day Glazers effectively are out of control from this company. That is the day when we can actually freely celebrate. उनके बाद वो लोग घंटा कुछ नहीं कर सकते. चलो थैंक्स श्रीकांत, ये तो बहुत मतलब इजीली तुमने समझा दिया है कि क्या है, क्योंकि जो यूनाइटेड का भी प्रेस रिलीज दिया है उसमें भी ये 25% ए और 25% बी टुगेदर लिखा है, विच डजंट क्लैरिफाई दिस 50% सिचुएशन, जिसकी वजह से ये जो कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को, ये शायद अभी क्लियर हो जाएगा. तो एक चीज यू सेड इन योर पॉइंट के ग्लेजर एसजेआर और सर जिम रैटक्लिफ इज नॉट स्टूपिड. तो प्रशांत थोड़ा समझाओ कि भाई हु इज ही, इफ ही इज नॉट स्टूपिड, हु इज ही, कौन है भाई ये? थैंक यू प्रशम. सबसे पहले ना मतलब अभी मुझे यूरोप में आके थोड़ा टाइम हो गया. मैं हमेशा जो लोगों को देखता हूँ ना, तो यहाँ पे एक कॉमन सेइंग है कि जो आदमी केमिकल और ऑयल में धंधा करता है ना, तो उसको चूतिया नहीं समझना, क्योंकि ये दो ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कार्टेल, ड्रग लॉर्ड्स या वॉरफेयर बहुत आगे है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समवन लाइक रोमन अब्रामोविच, जो रशियन ओलिगार्क थे, यार तुम उनके साथ तुम गैंग वॉर या कार्टेल वॉर में नहीं जीत सकते. ठीक है, इनियोस एज अ कंपनी की हिस्ट्री ही वैसे रही है. ठीक है, पेट्रोकेमिकल कंपनी है. अबिजान, सोमालिया, ऐसे एरियाज में जाके इन्होंने अपना ऑयल रिफाइनरीज खोला है जहां पे काफी लोकल हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता था, और सर जिम रैटक्लिफ ने नेगोशिएट किया था. In sense of Sir Jim Ratcliffe, apparently he's a boyhood United fan. He's a boyhood Chelsea fan as well, but eventually got converted into a United fan years later. जब चेल्सी पे पहला पहला बिड आया था रोमन अब्रामोविच का, सर जिम रैटक्लिफ वाज इंटरेस्टेड, बट उस टाइम पे उसके पास उतना पैसा नहीं था खरीदने के लिए. बट अगेन जब रोमन अब्रामोविच वाज गोइंग, he and his partners decided to buy the club, but they failed to Ted Boehly. न्यूकासल खरीदने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ. इवेंचुअली ही बॉट अ क्लब इन फ्रांस कॉल्ड एज ओजीसी नीस. नाउ ओजीसी नीस इज अ वेरी वेस्ट हैम लाइक क्लब. ठीक है, मिडिल क्लास वालों का क्लब है वो. काफी पैशनेट फैंस है. उसका टेन्योर एट नीस हैज बीन वेरी मिक्स्ड. ठीक है, 5 साल में 6 मैनेजर बदले, मोस्ट फेमस बीइंग पैट्रिक वियरा. एक मैनेजर तो फोर्सिबली बदला गया, क्रिस्टोफ गॉल्टियर, जो फ्रेंच कोच ऑफ द ईयर था पीएसजी, लेटर पोच्ड हिम. So that was a forcible loss, which he can't do anything about it, right? तो उसका टेन्योर तो काफी मिक्स्ड रहा है. फ्रांस में तो no one likes him for obvious reasons, because he comes and flashes his money all the time. मतलब जैसे तुम वेस्ट हैम फैंस या वेस्ट हैम मैच जाओगे देखने के लिए और तुम वहां पे पैसा दिखाओगे, यार वो हार्ड वर्किंग लेबर क्लास पीपल है जो अपना पैसा बचा के टिकट देखते हैं. वहां पे तुम मोनाको के कैवियर और यॉट टाइप में जाके देखोगे तो यार पीपल विल नॉट लाइक यू. उसका और ग्लेजर्स का ये 2-3 सिमिलैरिटी है. पहला सिमिलैरिटी है, दोनों मैच देखने नहीं जाते. सर जिम रैटक्लिफ हैज नॉट गॉन टू वॉच अ लॉट ऑफ नीस गेम्स. उसने हार्डली 3-4 मैच देखे हैं, और 3-4 सब बड़े बड़े गेम जहां But पे यार नीस हार गई. यूनाइटेड हैज गॉट टू बी डिफरेंट. मतलब यूनाइटेड तो अलग है ना यार, वो हाँ, of रहता भी course. होगा I'm यूके. just saying similar to Glazers that he never goes and watches a game. ठीक है, he's gone to PSG versus Nice, those kind of games जहां पे Nice हार जाती है और मैनेजर फिर सैक हो जाता है. ठीक है, तो प्रशांत उसका फिर हम लोग विजन इतना ही है. सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ये बता ना मेरे को. ये तो मेरे को लग रहा है कि मुझे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए. देख, सेलिब्रेट करने का रीजन है कि सर जिम रैटक्लिफ, मतलब वो आदमी रेगिस्तान से पैसा बनाता, समझ रहा है? तो उसको पता है कि फुटबॉल एस्पेक्ट्स में क्या चाहिए एक क्लब को. मतलब व्हाट डज ही नीड टू मूव दिस क्लब फॉरवर्ड. नीस का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है. इट हैज वर्कड वेल फॉर देम. राइट नाउ नीस आर थर्ड इन लीगा. ठीक है, इन अ लीग वेयर देयर इज पीएसजी, यू कांट जस्ट बाय प्लेयर्स एंड विन. वहां नहीं होने वाला, क्योंकि पीएसजी विल ब्लो यू आउट ऑफ प्रोपोर्शन.
फॉर दैट यू नीड राइट स्ट्रक्चर. सर जिम रैटक्लिफ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, ही अपॉइंट्स राइट पीपल एट राइट प्लेसेस. ठीक है, जैसे ही द टेक ओवर रूमर स्टार्टेड, सी हुज नेम्स आर वी लिंक्ड विथ. वी आर लिंक्ड विथ सर डैन एशफोर्ड्स नेम. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ही इज द स्मार्टेस्ट गाय गोइंग अराउंड. तो सर जिम रैटक्लिफ इज अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट अ फुटबॉल एक्सपर्ट. सो फैंस हु एक्सपेक्ट कि सर जिम रैटक्लिफ आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, नो, वो सब नहीं होने वाला. ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस. वहां से ये क्लब कैसे जाता है वो देखने के लिए इंटरेस्टिंग है. एंड नीस एज अ क्लब ना हैव सडनली स्टार्टेड मिंटिंग मनी. ठीक है, पहले बहुत लॉस में थे. नीस इज इन प्रॉफिट राइट नाउ बिकॉज ऑफ सर जिम रैटक्लिफ एंड हिज आइडियोलॉजीज. ऑफ कोर्स उनके ट्रांसफर्स हैव बीन प्रीटी कंट्रोवर्शियल. जैसे कैस्पर डोलबर्ग साइन किया था 20 मिलियन में, हर जगह वो भाग भाग के फिर इवेंचुअली बेचना पड़ा उसको. बट ही नोज हाउ टू पुट स्ट्रक्चर. एटलीस्ट पीपल अराउंड हिम नो हाउ टू पुट स्ट्रक्चर फॉर हिम. ठीक है, तो दिस मतलब देर आर टू थ्री थिंग्स आउट हियर अभी जिस पे बात हो सकती है. एक तो ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी ओल्ड ट्रैफर्ड गया है या हु हैज बीन फॉलोइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक सिग्निफिकेंट जो बात निकल के आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है एंड इट्स आर्केक. तो उसमें $300 million इन्वेस्टमेंट हैज बीन प्रॉमिस्ड बाय सर जिम रैटक्लिफ. नंबर टू, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो डेट फ्री है ये सारी चीजें. इट इज नॉट बेस्ड ऑन डेट. वो खुद के पैसे या मतलब कंपनी के पैसे से लगाने वाला है. वो जो एक लेवरेज बाय आउट जो था, जो ग्लेजर्स ने किया था, और जो बड़े बड़े लोन्स ग्लेजर्स ने लिए थे. ब्लेम द हॉर्स प्रशम. जिनको पता नहीं है, ये एलेक्स फर्गसन के घोड़े और उनकी बात चल रही है ओनर्स की. बट ठीक है, वहां नहीं जाएंगे, उस पे दूसरा एपिसोड होगा. रॉक ऑफ जिब्राल्टर. Yes, रॉक ऑफ the Rock जिब्राल्टर, of यस. Gibraltar that shook the theater of dreams. But तो ये दूसरा है जो $300 million का इन्वेस्टमेंट होना है. और नंबर थ्री पॉइंट जो है, एक वो है जो भी श्रीकांत ने भी उस पर टच किया कि ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये वो टाइम लगता है कभी कभी. और एवर्टन का जैसे देखा है तो एवर्टन के लिए बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड हो चुका है ये प्रोसेस. और मोस्ट लाइकली प्रीमियर लीग इज नॉट गोइंग टू गिव अप्रूवल बाय द एंड ऑफ द ईयर, दे हैव सेड. तो इसमें एक एडवांटेज ये है कि भैया द न्यू ये ओनर्स, सर. हाँ जी. और द न्यू ओनर्स. या फॉर द व्हाई? आई डोंट नो because दिस. they've rushed, they want it before the end of the year and the Premier League has said we will not be rushed. हम हमारा खुद का टाइम लेंगे, अच्छा, आराम से होगा तब होगा. तो ओके. इसमें एक एडवांटेज ये रहेगा मेरे हिसाब से एटलीस्ट कि सर जिम रैटक्लिफ इज बहुत टाइम के बाद फिट एंड प्रॉपर. या फिट सब एंड प्रॉपर. फिट एंड प्रॉपर. बहुत टाइम के बाद ऐसी खबर आ रही है यूके में दैट अ ब्रिटिशर इज टेकिंग ओवर अ ब्रिटिश क्लब, और इन दिस केस यू कैन से एन इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट. बहुत सालों के बाद ऐसा ऐसा हो रहा है. तो दे विल आल्सो बी मोर विलिंग टू पुश दिस थ्रू एज सून एज पॉसिबल. और ये क्लोज करने के लिए वो भी काफी खुश होंगे. बट पॉइंट नंबर वन और टू इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है 300 million की, तो वो कहाँ कहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है या सर जिम रैटक्लिफ ने कोई प्लान्स दिखाया हो? श्रीकांत एंड प्रशांत, अगर इफ यू हैव रेड एनीथिंग एंड इफ यू हैव एन इनसाइट इनटू व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर. यार आई थिंक जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आई थिंक वी नीड अपग्रेड्स प्रीटी मच एवरीवेयर, राइट, स्टार्टिंग विद समथिंग एज बेसिक एज the leaking roof at Old Trafford over stands. और मतलब that stinking is steps when you climb. stinking steps. But and वो सच है, मतलब वो genuinely सच है, right? It's and the because the number of people who say that चाहिए वो तो हमें that is basic infra, which is I would say more 8-10 million के ऊपर उस पर खर्चा नहीं होगा because this is hygiene, this is like basic. I think what might be something that he will be interested in is to see if he can heighten some of the stands. I think for the longest time there was a plan कि साउथ स्टैंड को बढ़ाएंगे, पीछे से रेलवे ट्रैक चलता है उसके. बट कैन वी डू समथिंग अबाउट द साउथ स्टैंड? आई थिंक दे हैव टेकन ड्राइंग्स फ्रॉम आर्किटेक्ट्स इन द पास्ट कि सीट बढ़ा सकते हैं क्या. आई मीन डिस्पाइट यूनाइटेड बीइंग इन सच शैम्बोलिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ओवर द लास्ट 10 years, अभी भी सीजन टिकट्स तो बिकते हैं, वेटिंग लिस्ट तो बनती है. तो इट मेक्स सेंस कि 85,000 का अगर कैपेसिटी बने तो 85,000 टिकट्स बेचें, right? And we've not been, honestly, at least the one good thing the Glazers did was never increase ticket prices. So I think at this price, you can Because they were make capped, ना श्रीकांत, they were already capped. हाँ, जो भी है, मैं बोल रहा हूँ चलो. my point is स्टेडियम अपग्रेड में वो है. I स्क्रीन think लगाएंगे there क्या? was स्क्रीन मेन क्वेश्चन ये है, स्क्रीन लगेगा कहीं पे? जगह नहीं है अभी, तो आई थिंक जगह नहीं है स्क्रीन लगाने के लिए एज ऑफ नाउ. एक रेफरी बट हाँ, डिसीजन मिलता नहीं है बे, क्या स्क्रीन लगा के करने क्या वाला है, इनमें क्या देखने वाला है. अपने बट गोल बट वो मारेंगे ना तो हाईलाइट दिखाएगा ना स्क्रीन पे, अपने गोल मारेंगे तब. वो तू नींद में रहेगा.
I think Carrington needs a big upgrade. I think Yes. that is the one that I think will take most of the money. I think infrastructure may it's loosely used right now. I don't think we have access to specific plans that are there, but I think 300 तो नहीं लगेगा मेरे हिसाब से. I think when he says infrastructure 100-150 million, unless there is some major overhaul in the stadium, मुझे लगता है 100-150 million में हो जाना चाहिए. The remaining 150 can be reserved. See, why that 300 million is otherwise important is this FFP rule says you are allowed to lose about $100 million a year, Correct. unless that is made good by primary infusion. Hmm. And what primary infusion means is this 300 million is called primary injection of cash. Now, whether that cash is being used for infra or whatever, FFP will not mind as long as that money is lying in the company's bank account, right? So I think ये infrastructure projects तो 3, 5, 7 साल के Sorry, लिए चलेंगे, Shrikant, but just to add for clarity for people, right? He can't use this for transfers. This is but it specifically kept different for the club's development. It can be infrastructure, youth system, whatever. मतलब training facilities, pitches, etc., etc. And also a small, heads up for fans. ऐसा नहीं कि सर जिम रैटक्लिफ आ गया, अभी 1 बिलियन का पर्स मिल गया यूनाइटेड को, जाके खर्च करेंगे. नहीं, we are still bound by FFP. मैं वही कहने वाला था कि ये जो दिस इज द पॉइंट विच वाज द लार्जर पॉइंट आई वांटेड टू गेट टू, कि ये 300 मिलियन जो हमारे पास आया है, ये ऐसा नहीं है कि हम कल जाके किलियन एम्बापे को 300 मिलियन दे देंगे और कल वो आके गोल मारेगा हमारे लिए. ऐसा नहीं है, गोल तो नहीं मारेगा, हमारे पर ठीक है. ठीक है. फिर पॉइंट ये है कि ये 300 मिलियन से मच नीडेड जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अब आप एक एक प्लेयर यू कैन सी, तुम भी देख सकते हो कि कैसेमीरो, वरान, रोनाल्डो, बड़े बड़े प्लेयर जो डोर से आते हैं. इब्राहिमोविच इतने सालों पहले कह के गया है कि आर ट्रेनिंग फैसिलिटीज आर आर्केक, एंशियंट है. जो बाकी के क्लब्स 22nd सेंचुरी में पहुंच गए हैं, हम लोग अभी भी फर्गी के एरा में 2000s में ही जी रहे हैं. तो ये जो एक चेंज और अपग्रेड होगा, इसमें सबसे ज्यादा फंड्स जाएंगे, और इससे जो बेनिफिट होगा वो शायद हमें इंजरीज में भी दिखे. इतनी इंजरीज जो हो रही है हमें, इतनी, इट्स नॉट कोइंसिडेंटल कि हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज को लोग गाली देते हैं और हमें इतनी इंजरीज होती है. तो ये सब चीजें शायद कम हो सके, बेटर हो सके. अब रैप अप करेंगे थोड़ा वीडियो को. एंड में सवाल वापस एक ही जो खड़ा होता है कि क्या हम खुश है क्योंकि रैटक्लिफ विल बी गुड फॉर अस, या हम खुश है कि फाइनली चलो एक बला तो टली. प्रशांत, मतलब मेरे हिसाब से आई एम मोर हैप्पी बिकॉज इट इज वन वे ऑफ एग्जिट फॉर ग्लेजर्स. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट ग्लेजर्स विल बी आउट ऑफ दिस क्लब इन 12 months और 1 year और 2 years. वील सी हाउ इट गोज. बट उनका मतलब वो वाला हिसाब नहीं होता था क्या, इफ नॉट मोदी हु वाला हिसाब अब नहीं रहेगा. ठीक है, यू हैव समवन हु सेड दैट कि आई वांट टू बाय दिस क्लब एंड ही इज बॉट इट, अनलाइक अदर पीपल हु हैव रिसेंटली शोन इंटरेस्ट एट मैन यूनाइटेड, और जब बात खुलने आ गए लोग सब पीछे हट गए. तो सर जिम रैटक्लिफ स्टूड बाय व्हाट ही सेड एंड ही गॉट द क्लब. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट्स फॉर not only Manchester United, also for United fans to see, are we really skeptical about this gentleman? Skepticism तो होने वाला है. Sir Jim Ratcliffe will have to fight this skepticism. उसका ट्रैक रिकॉर्ड है ये, ठीक है, वो जहां भी गया है skepticism हुआ है. बस यही देखना है कि कब तक. बट प्रशांत, मेरा सवाल ये है, और श्रीकांत से भी पूछता हूं मैं यही, कि विल यू हैव टू फेस लेस स्केप्टिसिज्म? बार काफी लो है ना यहाँ पे. नहीं, he will face same skepticism as हैं. Glazers. मेरे हिसाब से he will face the same thing as Glazers. The only difference is for him, he may not, he will get time for let's say 6-7 months. I was just going to say. Yeah, उसके बाद तो he will be measured in the same benchmark as Glazers, because उसको पूछेंगे क्या किया तूने खरीद के? कुछ नहीं ना. तूने ये प्रॉमिस किया था, कुछ नहीं. ग्लेजर्स, हमारा ग्लेजर्स से प्रॉब्लम क्या है? तुम भाई पैसा लूटो, चलेगा, ठीक है लूटो, बट क्लब में तो डालो. जो हमको हमारी बेसिक जरूरतें हैं वो तो दो. So Sir Jim Ratcliffe will also face the same acid test. एक चीज ये है कि we need to know when to judge him. 25% स्टेक रख के जिम रैटक्लिफ बहुत कुछ नहीं कर पाने वाला है. He is saying he has football side operations, but in reality, any business and Manchester United में football and non-football will be intertwined, right? मतलब ये बोलते हैं ना कि तुम 40 days के लिए यूएस जाओ, 30 days शूटिंग करो, वीडियो शूटिंग करो, ये करो, वो करो. Obligations that are there to run the commercial side of the team is also has an impact on football. You can't just say I'm going to shut everything, मैं सिर्फ यही करूंगा, वो नहीं होता.
सारे मैनेजर्स ने ट्राई किए होंगे, अलग अलग मैनेजर्स ने। तो विद जस्ट फुटबॉल साइड कंट्रोल विद 25%, अगर हम जिम रैटक्लिफ के से मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। I think the real litmus test is once he gets to majority. I don't know when that will happen, probably a year's time, but I'm pretty sure it will be very time bound, 12, 18, 24 months, but pretty sure the next couple of years. Also, उसके Shrikant, बाद sorry to the interrupt. first two, उसके Yeah, बाद there is a उसका bigger first two, question lining up right now. When you are saying this, now there is a bigger question lining up. See, a lot of fans are of the opinion that Sir Jim Ratcliffe आएगा, एरिक टेन हाग को 3-4 हफ्ते दे देगा, 3-4 महीने देगा, नहीं रिजल्ट आया सैक करेगा, क्योंकि फुटबॉलिंग डिसीजन उसके पास है, you know. And if God forbid Eric Ten Hag gets sacked, there will be one section of the fans who will be like, अरे अच्छा मैनेजर मिला, इसको टाइम भी नहीं दिया, हम क्यों सर जिम रैटक्लिफ को टाइम दे। ये भी एक अप्रोर आने का बहुत चांसेस है। करेक्ट। बट ये जो बोर्ड डायनामिक्स है वो तब शिफ्ट होंगी जब उसको 51% मिलेगा। तब तक के लिए ही नोज इट कि यार ये यही तरीका था डील करने का। शेख जासिम ने तो 100% खरीदने की कोशिश करी, उसे नहीं मिली, शायद वैल्यू भी ज्यादा दिया होगा उसने, बट यही तरीका है, क्योंकि ग्लेजर्स को ओवर 3 इयर्स 5 इयर्स ही बेचना है, क्योंकि उनको लग रहा है 3 साल बाद वो लोग 10 बिलियन में बेचेंगे ना, बाकी का शेयर होल्डिंग, बाकी का जो 30% है वो 10 बिलियन के वैल्यूशन में बेचेंगे। ये हायर शायद वैल्यू पे समथिंग टू डू, मैंने कहीं पढ़ा था रिसेंटली के समथिंग टू डू विद दिस सो कॉल्ड सुपर लीग अगेन दैट जो निकल कर आ रहा है उसमें पक्का उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है ना। देयर इज अ बिग पॉलिटिक्स। सुपर लीग तो बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज बार्सिलोना विल प्ले रियल मैड्रिड विल प्ले बार्सिलोना, एंड देन मेस कुन क्लब विल प्ले हाला मैड्रिड। यही दो ही जन तो है। यूवेंटस भी तो कुछ कंफर्मेशन दे नहीं रहा, ऑब्वियसली लोग खेलेंगे। बट प्रशांत, मुझे लगता है कि जितना अभी लग रहा है उससे ज्यादा इसको वाटर डाउन करके 5-7 साल में अलग कोई अवतार में लॉन्च कर देंगे। हाँ, ये या तो वो लोग करेंगे या तो यूएफए खुद, मतलब ऑब्वियसली यूएफए ऑलरेडी करने की कोशिश कर ही रहा है। बट जिम रैटक्लिफ में मैं खाली एक अगेन दो चीज कहकर फिर हम बस रैप अप कर देंगे। एक तो ये है कि एक मुझे मेरे हिसाब से क्या डिफरेंस होगा नीस और यूनाइटेड के रनिंग में। एक तो है श्रीकांत सेठ के मैनचेस्टर यूनाइटेड है तो अलग है, एक्सपेक्टेशंस भी अलग है और उसको भी पता होगा कि अलग है, यहाँ पे वो नहीं चलेगा जो ये है। दूसरा, कोट अनकोट वो बॉयहुड फैन है तो ज्यादा इंटरेस्ट तो उसको होगा ही, अगर नहीं भी आई बिलीव इट। तो सॉरी, आई बिलीव दैट। आई थिंक ऑन बोथ योर पॉइंट्स आई बिलीव कि देयर इज मोर फॉर जिम। यार नीस को ओन करता है कोई। आज मैं तू और प्रशम बैठ के बात कर रहे हैं तो हमें तो जिम रैटक्लिफ अगर यूनाइटेड के लिए बिड नहीं करता तो घंटा नहीं पता होता जिम रैटक्लिफ क्या है। शायद प्रशांत को पता होता इनियोस क्या है, बट वरना वी वुडंट केयर। दैट्स द ऑनेस्ट और आंसर, श्रीकांत राइट? दूसरा ये है कि नीस में फ्रांस में क्या हो रहा है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता ये कंट्री में। यहाँ यूके में बैठ के हम लोग बैठे हैं तो पीएसजी के साथ क्या हो रहा है, वी ओनली केयर व्हेन दे गेट नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, वी डोंट रियली केयर और अपार्ट व्हेन फ्रॉम पीएसजी लूज वन रैंडम मैच हियर एंड देयर, 5-0 ऐसा कुछ हार के आ जाता है तो हंसते हैं लोग। So for his profile, this is a very, very, very important Exactly. project. For him to fumble the bag on one of, like I said earlier, whether you're a United fan or not, whether obviously we are not Liverpool fans, but we have to accept that in this country, these two clubs are an institution. इसके पीछे एक पूरा legacy है, एक पूरा culture है, एक पूरा history है जो चलता है, और for him to fumble that, being Sir Jim Ratcliffe in this country, it will be a very big thing. तो उसके लिए जो स्टेक्स है वो काफी हाई है और उसको उस पर डिलीवर करना ही है। दूसरा, मेरे हिसाब से फैंस एक दो साल तो देंगे, क्योंकि यार हम हाँ ग्लेजर से निकल रहे हैं यार। हम काफी पेशेंट फैन क्लब है ऑनेस्टली। वही एग्जैक्टली। मैं तो बोलता हूँ आज के तारीख में महात्मा गांधी वाला आउटलुक अपना ही है, नॉन वायलेंस के हिसाब से ओनर को भगा दिया टाइप्स। प्रॉपर यूनाइटेड फैंस ने किया है, वो पेशेंटली 10-12 साल वेट करके फाइनली वो जा रहा है ग्लेजर थोड़ा थोड़ा और उसकी वजह से जो एक रिलीफ होगा, और जैसे श्रीकांत ने वही कहा कि आई फील फैंस विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, कि उन्हें पता है कि ये इतना क्लब कचरे में है कि एक कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो हिलाकर जिम रैटक्लिफ निकाल देगा उसको और जिता देगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि हम ग्लेजर्स के साथ भी हम लोग ट्रॉफीज जीते हैं, कुछ तो लास्ट मोरिनियो भी जीत के गया, एरिक टेन हाग भी लास्ट सीजन ही जीता है, कुछ लोग शायद भूल जाते हैं लास्ट सीजन ही ट्रॉफी जीता है वो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल कुछ जीत नहीं पाएंगे और स्ट्रगल करेंगे और ये होगा वो, ऐसा नहीं है। वी कुड स्टिल विन अ ट्रॉफी और टू। द क्वेश्चन इज कि क्या मतलब ये जो बाकी की चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग ग्लेजर्स को गाली देते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फुटबॉलिंग सेटअप,
ये सारी चीजें होगी कि नहीं होगी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हियर एंड देयर I विनिंग think वन FA I कप, think वन the लीग कप I इज think नॉट if I द had to सेम. sum up my frustration, and सबका अलग है, but my frustration is with Glazers, it has always been one step forward, two steps back. मतलब एक लाइट जब दिखता है कि जैसे लास्ट सीजन हम जीते, इस सीजन कुछ करके किसी तरह प्राइमरी इन्फ्यूजन करके कुछ करके एफएफपी के लीग को ब्रेक करने के लिए, दिस वाज अ सीजन टू प्रॉब्ली 350-400 मिलियन डाल देते यार ट्रांसफर्स पे. आई एम नॉट सेइंग वी वुड हैव गॉट द राइट गाइस, बट दैट वाज द ओनली वे टू ब्रेक द रट. क्योंकि हर बार हम अचीव करते हैं वो सीजन में हम करते हैं खर्चा, but not solving the biggest pain points. Go after your biggest stars, right? Yeah, Shrikant, And then we just come when you back. touched on that, right? Like when we are summing up this video, I just want to take your opinion of the season so far. प्रशम और मैं दिन भर इसी में बकवास करते रहते हैं. हम लोग ने अभी छोड़ दिया बकवास करना इस पे, क्योंकि वही है. हम लोग ने जो जो बोला वही हुआ, एंड वी आर जस्ट सिक ऑफ इट. ठीक है, ऑफ यार कोर्स वी हैव मेरा नॉट गिवन अप. You are asking this यार question, मैं तो ये भी बोलूंगा, we beat Chelsea, lost to Bournemouth, drew at Liverpool, drew at Anfield against Liverpool, lost again after that वेस्ट to हैम. West Ham. अभी Yeah. next game Aston Villa at home, we will win. पक्का हारेंगे. नहीं नहीं, यार, we नहीं will जीत win. पाएंगे. I'm telling you, we'll win, and we'll not be able to explain why and what happened. We'll probably win against Aston Villa and then वापस किसी से हार. कौन है? Forest, लूटन है ना? Nottingham फॉरेस्ट है. Forest. हाँ, जो नूनो का वैसे भी रिकॉर्ड अच्छा है अपने अगेंस्ट. ठीक ठाक है. I mean, अच्छा नहीं, ठीक ठाक है. That painful Wolves games, 7-8 हाँ, games. करेक्ट. यार बहुत पेनफुल सीजन है, आई थिंक. एंड माय बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सीजन्स लाइक दिस इज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सीजन टू वॉच. मतलब गेम में देख के क्या बनाऊं इस गेम का, क्या हो रहा है, मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट एरिक टेन हाग इज ट्राइंग टू डू इज द टफेस्ट पार्ट. Having said all of that, does he have enough credit in the bank? Do I trust him? Does he know what he is doing? Somewhere I believe yes. Maybe the with limited evidence कि pitch में क्या दिख रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं. I would like to see his performance with let's say all the injured players back. I think there is some amount of कुछ players पे थोड़ा over reliance है on the defense. Let's say Martinez for example. I genuinely believe कि वो line breaking passes के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते. ठीक है. देन स्कॉट मैकटोमिने नंबर 10 पे गायब रहता है यार. वो नहीं है, वो मिडफील्डर नहीं है हमारे लिए. नो सो आई कमेंट. जस्ट वांट टू आई जस्ट वांट टू see him get a rhythm of 2-3 games similar to what he had with Eriksen, Casemiro even last year, right? And then see where this goes. I'm happy to write off this season if it means that some principles of play get ingrained into the team, whether we see it or not. हमको दिखता नहीं तो चलेगा, that's fine. And I also think he's a very good coach. We should not jump the gun with him. Yeah. That is how I would sum up. And looking for signs यार कि कोई एक गेम में कुछ दिख जाए और वो पैटर्न बन जाए और अगले 3-4 गेम में वो दिखे. प्रॉब्लम इज मैं वही आज ग्रुप में डाला था. मैं हर गेम के बाद है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ. अरे कोई नहीं, एक खराब दिन है, कोई नहीं, अगला अच्छा हो जाएगा. मैं यही तो मोड पे रहता हूँ. हम और हम फिर ना साला एंड में हम उल्टा ना ही हो I'll जाता tell है. you where what is missing. The team is missing a killer instinct, and we are missing composure in big moments. जैसे Watching अगर गाना watching this Man United team feels like watching India in a World Cup semi-final और final ICC event में. बस यही है, सच में पता नहीं चलता कि कैसे हार गए, बस soft हार जाते हैं. and very soft. I think बहुत soft है यार टीम, बहुत ज्यादा soft है. I think जो लिवरपूल के सामने था, that intensity should be there in every game, right? मतलब somehow मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ missing है. Something is missing, and I don't know if it is all this uncertainty. I'm hoping it is something that is solvable, I think but in very Prasham difficult to and explain. yeah, in Prasham and my analysis of the entire Man United season, right? Just to sum it up, I think अब बोले तो क्या बोले, कहे तो क्या कहें, वैसा हो गया हम लोग का हालत. So हाँ I think यार this is a सच good में. note to wrap our video today then. हाँ, और थोड़ा स्पिरिट्स हाई रखेंगे अभी, मतलब हाँ क्रिसमस यार वगैरह आ रहे हैं, I थोड़ा think पैसा yeah. वैसा I मिला think है हमको, डायरेक्टली तो नहीं मिला बट लग रहा है हमें ही मिला है ऐसे थोड़ा. तो शायद थोड़ा मजा आए नेक्स्ट न्यू ईयर में. क्या देखते हैं क्या होता है, क्या. yes, I am optimistic. या मैं तो विला के लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ. प्रशम का ही मेरा भी वही है कि मैं तो एक पक्का साल बाद की हराएंगे बात विला कर रहा को. हूँ मैं तो मैं आई डोंट नो यार, मेरे को जिम रैटक्लिफ को लेके गुड फीलिंग है. आई थिंक मैनेजर्स चेंज होते हैं तो ही इतना टर्बुलेंट फेज होता है क्लब के लिए. तो इमेजिन ओनरशिप चेंजेस इज अ Yeah, ह्यूज डील. तो especially for a club who's been battling it publicly for 15-20 years, not one or two. एंड So एंड आई इट्स एसडीआर हैज टू वर्क. एंड आई थिंक हमारी हमारी जनता तो ठीक है, फैन बेस विल मैनेज दिस. को मुझे तो उन पे भरोसा है. अभी जितना जल्दी हो सके ग्लेजर को निकाले और फुटबॉल साइड पे ठीक करें चीजें, बस वही है. चले, थैंक यू सो मच हमारे के साथ जुड़ने के लिए.
कोई सवाल हो आप, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज पुट इट कमेंट में डालिए, वील ट्राई टू गेट बैक टू यू। श्रीकांत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्रशांत, देखते हैं Thank you so एस्टन much. विला गेम के बाद क्या बात हो सकेगी, एंड सी यू सून, बाय बाय। See you, man. See you.